Okay, here we'll start with lecture 18. We'll solve sums based on 17th lecture. We'll see second sum first. Here they have given, state whether given below a function from A, ABC, B, X, Y, Z. So two sets are given, three functions are given, okay, in form of this diagram. So we need to check whether these are function or not based on previous lecture. So we have seen this, right? This is function, this is not function. So previous 17 lecture ke based pe we'll solve this three sums. Okay, so first, what is f of a? Here f of a you have to write in exam like this. बाद जो डायग्राम दिया जाएगा वापस डायग्राम ड्रॉ करना है, ये सेट लिखना है, एंड देन f of a is equal to what? y. f of c is equal to what? x. यहाँ पे what is f of b? f of b is not defined. Is not defined. Okay. Now students, the diagram to be function, we need to define all the elements. ये सब elements point out करना चाहिए. Okay. जहाँ पे first argument, जैसे मैंने बताया था, this is set A, this is set B, this is आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इमेज. तो हर एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन करना होता है. अगर एक भी आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन. सो विल से फंक्शन a to b is not function. Second, so this is set A, this is set B, this is argument, and this is what? Image. Now see, what is f of a? f of a is given as y, f of b is given as what? Z, as well as f of c is given as z, and also f of c is equal to what? x. As I have told you in lecture 17c, ये हम लोग ने देखा था. So f यहाँ पे f of b 2 था, f of b 3 भी था. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो एक ही आर्ग्यूमेंट का दो इमेजेस नहीं हो सकते. एफ ऑफ सी जेड, एफ ऑफ सी इज एक्स एज वेल. सो एक आर्ग्यूमेंट का दो इमेजेस नहीं हो सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. Therefore students, f of a to b is not function. Okay, the argument can't be two, argument can't have two images simultaneously. That's why this is not function. So function कब नहीं हो सकता? एक तो argument के दो images नहीं होना चाहिए और हर एक argument defined होना चाहिए. Okay, so see this example C वाला. Okay, C में क्या है? f of a is equal to, this is set A, this is set B, this is argument, and this is image, right? So f of a is given as x, f of b is given as z, and f of c is given as x. Okay, now students, though f of c and f of a is same, though these values are same, but हर एक argument define किया हुआ है और यहाँ पे y डिफाइन नहीं है. इमेजेस में कुछ एक नहीं डिफाइन किया चलेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट सब डिफाइन करना होना चाहिए. ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर डिफाइंड. ओके, दो आर्ग्यूमेंट का एक सेम इमेज है, डजंट मैटर, बट दिस इज व्हाट? फंक्शन. सो f of a to b is function. We'll see second type of example. Here they have given, let f as to a implies b. That means what? Function of a to b, a function, determine whether the function is one to one or onto type or identity. So तीनों में से function identify करना. This is second type of example. Okay, so here they have given two sets. A is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 1 2 3 4. See, both the sets are identical, but the function what they have given. Now यहाँ पे images diagram नहीं दिया है, right? They have given function. फंक्शन, और ये कौन से तरीके में रहता है? एफ ऑफ ए कॉमा बी, मतलब पहला जो एलिमेंट रहेगा वो ए में से रहेगा और दूसरा जो रहेगा बी में से रहेगा. ओके, तो वी हैव टू मेक डायग्राम ओवर हियर. ओके, सो दिस इज ए, दैट इज आर्ग्यूमेंट, this is B
दैट इज इमेज। ओके, तो ए में क्या है 1 2 3 4 एंड बी में क्या है सेम 1 2 3 4। लेकिन फंक्शन का जो रिलेशन वो लोग ने दिया एफ एज टू ए टू बी कैसे दिया है, एक का एक से है 1 से 1, 2 का 3 को जाता है 2 का 3 को जाता है, 3 का 4 को एंड 4 का 2 को जाता है, राइट। दैट मीन्स व्हाट, एंड अगेन वी हैव टू राइट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, f of 4 is equal to 2. Now you can see student that f of 1 is equal to 1 but f of 2 is equal to not 2, मतलब आइडेंटिकल नहीं है। ओके, मतलब ये आइडेंटिकल सेट नहीं है। तो दूसरा 1 to 1 और ऑन 2 कैसे आइडेंटिफाई करने का, एक का एक ही है, दो का भी एक ही है, मतलब जो f of a 1 है 1 ही है, f of 2 3 1 1 है ना, दैट मीन्स दिस इज फंक्शन 1 to 1। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर हम लोग ने देखा था, व्हाट इज़ 1 to 1 फंक्शन, the function a to a, sorry, a function a implies b is said to be 1 to 1 if different element in a domain a have distinct images, have distinct image मतलब अलग अलग images है, एक का 3 दो का 3, सॉरी एक का 1 दो का 3 3 का 4 4 का 2, अलग अलग images है, राइट। मतलब हर एक आर्ग्यूमेंट का images are different। और this function a to b is 1 to 1 function. This can be also written as 1 to 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट यू कैन सी ऑनटू का डेफिनेशन क्या था अपना, ऑनटू का डेफिनेशन सी अ फंक्शन a to b is said to be onto if each element of b is image of some element of a, मतलब b का each element कोई भी एक एलिमेंट, यहाँ पे देखो 2 इज इमेज ऑफ दिस, सी एफ ऑफ 4 इज व्हाट 2, लेकिन 2 कहाँ पे है, इसमें है, अगेन सेम एफ ऑफ 4 है लेकिन 4 कहाँ पे, ये यहाँ पे है। सो दैट इज़ व्हाट इमेज, एक कोई भी एक एलिमेंट यहाँ आर्ग्यूमेंट में प्रेजेंट है। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, सो ए टू बी इज ऑल्सो ऑन टू function। ओके, सो दिस फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू एज वेल, दो टाइप है। अगर एग्जाम में पूछा है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, और आपने खाली 1 to 1 फंक्शन ही मेंशन किया और ऑन टू फंक्शन मेंशन नहीं किया, तो यू विल गेट ओनली 2.5 मार्क्स। तो दोनों टाइप का है तो दोनों टाइप मेंशन करने। ओके, अगर कन्फ्यूजन होता है ये ऑन टू है 1 to 1 ही है होगा या फिर ऑन टू होगा, तो सी द सेकेंड एग्जाम्पल, यू विल गेट क्लियर आइडिया। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, a as 1/2, 1/3, 1/4 and b as x, y, z, w, and function they have given 1/2, x, 1/4, y, 1/3, w। मतलब now draw the diagram a and b। a में क्या है 1/2, 1/3 and 1/4, यहाँ पे x, y, z, w। 1/2 टू कहाँ पे, x पे है, 1/3 टू y पे एंड 1/4 टू w पे। ये अकेला रह गया, रहने दो, डजेंट मैटर, यहाँ से अकेला नहीं रहता है, दैट मीन्स फंक्शन है। बट नाउ यू कैन सी 1/2 का इमेज क्या है x, 1/3 का इमेज y, 1/4 का इमेज w। यहाँ पे किधर 1/2 1/4 है, नहीं है। यहाँ पे किधर x y z है, नहीं है। मतलब इमेज आर्ग्यूमेंट में प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हर एक 1/2 का x है, 1/3 का y है, 1/4 का w है, हर एक का इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज व्हाट 1 to 1 फंक्शन। दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज ओनली अ 1 to 1 फंक्शन। f of 1/2 is equal to x, f of 1/3 is equal to y, f of 1/4 is equal to w। all argument are having different or distinct images। okay, therefore function is 1 to 1। यहाँ पे भी हर एक आर्ग्यूमेंट का इमेजेस अलग अलग था, राइट और रॉन्ग। 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 2, अलग अलग इमेजेस था।
लेकिन इमेजेस में जो एलिमेंट है 2, देखो आर्ग्यूमेंट में भी प्रेजेंट, इमेजेस में जो एलिमेंट है 4 आर्ग्यूमेंट में भी प्रेजेंट है. सो दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर 1 to 1 एज वेल एज ऑन टू. बट हियर सी 1/2 का x है, अलग अलग इमेज है हर एक आर्ग्यूमेंट का, लेकिन x y z किधर इधर प्रेजेंट है नहीं है. दैट मीन्स दिस इज ओनली 1 to 1 फंक्शन. I hope you got the difference between 1 to 1 and on to function. Okay, so exam point of view this is 5 marks के लिए expected है, but this is expected for 2.5 marks. अगर ऐसे आते हैं तो ऐसे 2 एग्जाम्पल आएंगे. ओके, एग्जाम ओरिएंटेड अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो 3 हम लोग ने किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन एंड दिस 2, सॉरी, स्टेट वेदर गिवन डायग्राम्स ऑफ फंक्शंस और नॉट, और यहाँ पे जो स्टेट ईच एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, ये दोनों पाँचों के पाँचों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट. गिविंग यू वन एग्जाम्पल, यू हैव टू सॉल्व एज एन होमवर्क. डिटरमाइन वेदर फंक्शन इज 1 to 1 और ऑन टू. 1 2 3 ए में है, बी में A B C D एंड फंक्शन इज A, A 2, B 3, C 4, D. आइडेंटिफाई, डायग्राम बना के f of 1 2 3 4 लिख के आपको स्टेट करना है वेदर 1 to 1 है और ऑन टू या फिर बोथ. ओके.